So please. So can you see my screen? Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss composting. So I believe every soil science student knows what is composting. Today we will be discussing a little bit details of composting, what composting is, how we do the composting, what are the benefits of composting. So we'll discuss this. So composting refers to a biodegradation process of a mixture of substrates. Remember this, I have said the biodegradation process of a mixture of substrates carried out by a microbial community composed of various populations in aerobic conditions and in solid state. So the significant points are the composting is the decomposition or the degradation of mixture of substrates, 1 point. Second, that decomposition is carried out by a microbial community, not a single microorganism, instead a combination of microorganisms. And this is done under aerobic conditions and in solid state. So that is called as the composting, the biodegradation process of a mixture of substrates carried out by a microbial community composed of various populations in aerobic conditions and in the solid state. So that is the composting. So why I am emphasizing on these few words, this is clear from this. The microbial transformation of pure substrates goes under the name of fermentation or biooxidation, but not composting. So that's why I was emphasizing on the mixture of substrates, right? So if the decomposition is taking place or the transformation with the help of microorganism is going on of a pure substrate, and then it is called as fermentation और बायोक्सीडेशन. ठीक है. सो कंपोस्टिंग में जो कंडीशंस हैं, एक तो ये है कि वो मिक्सचर ऑफ सबस्ट्रेट है जो डिकम्पोज हो रहा होता है, और एक मिक्सचर ऑफ कम्युनिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो उसको डिकम्पोज कर रही होती है, और वो एरोबिक कंडीशंस में हो रहा होता है एंड इज इन सॉलिड स्टेट. सो हम ये ऑलरेडी मैं ये चीज डिस्कस कर चुका हूं जब हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ चुके थे, वो पढ़ रहे थे, तो उस वक्त मैंने बात की थी कि व्हाई ए माइक्रोबियल कम्युनिटी और ए माइक्रोबियल कंसोर्शियम इज नीडेड to decompose a mixture of substrates. I told you at that time that there is no single microorganisms at planet which can produce every type of enzyme that can decompose every component of the mixture of substrates. So say for example, these days we have a lot of leaves falling and we try to compost those leaves. What we can do is we can collect those leaves and put them at one place. Now those leaves are made up of different components. It has carbohydrates, it has proteins, it has lipids, it has many things, it has lignin and many things. And everything, you know this is very basic biochemistry, you know that for every component to decompose that, a specific enzyme is required. And that enzyme is produced by the microorganisms. And one microorganism can produce 1 or 2 or 3 enzymes, but not all types of enzymes. So that is why that the decomposition or the degradation of the mixture of substrates is carried out by a microbial community
or a microbial consortium, not by a single microorganism. And this takes place under aerobic conditions and in solid state, right? So this is the exothermic process. And you know that the exothermic process produces energy in the form of heat, which results in an increase of the temperature in the mass. So ये आप गांव वगैरह में देखते हैं, जो आपके विलेज के शुरू में, गांव के शुरू में, वो जहाँ पे ये रूढ़ी का ढेर लगाते रहते हैं, बास का तो उसको आग लगा देते हैं, बास का तो वैसे ही सर्दियों में आपको उसमें से धुआं सा निकलता नजर आता है. That is due to high temperature. High temperature की वजह से एक्चुअली वहां पे डीकम्पोजिशन हो रही होती है, कंपोस्टिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, which is an exothermic process. हीट जनरेट हो रही होती है, ठीक है, और वो हीट जो है वो आपको धुएं की फॉर्म में नजर आ रही होती है, ठीक है. सो अगर आप उसको चेक करने की कोशिश करें तो वो आपको हॉट नजर आएगा, ठीक है. सो दिस कंपोस्टिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस which produces energy in the form of heat. और हमारे नॉर्दर्न एरियाज में मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था किसी का, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि वो घरों में जो वेस्ट था उसको कंपोस्ट करते थे, और उस कंपोस्टिंग से जो हीट प्रोड्यूस होती थी उस हीट को वो अपने घर का पानी गर्म करने के लिए यूज करते थे, जो वो बाथरूम में फिर यूज करते थे, ठीक है. और इससे वो कंपोस्ट जो बनता था उसको वो किचन गार्डनिंग में यूज करते थे, और जो जो उनका जो प्लान था, इसको बायोगीजर कह रहे हैं वो लोग, और जो हीट जनरेट होती है उस हीट से वो पानी को गर्म करते हैं, ठीक है. सो कंपोस्टिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. During composting, there is a temporary release of phytotoxins. So there is the possibility that there is the release of such substances which can be toxic to the plants. So that is why, that is one of the reasons that we do not add fresh organic material to the field. If we add fresh organic material to the field, it will undergo decomposition or composting, and there may be the release of phytotoxins, and those phytotoxins may damage your crop over there. So that's why it is suggested that first you have the composting process, and once the compost is ready, then you apply that compost to the field, which will be a good source of nutrients. So that is a temporary release of phytotoxins during composting process. After some time, that release no more is there. At the end of the process, this phytotoxicity is completely overcome, and the final product is beneficial to plant growth. As I have told you, कैन पे आपको जो प्रोडक्ट बनती है, जो कंपोस्ट बनता है, that has no toxic materials. Actually, composting का पर्पस ही एक, one of the purposes of the composting is to overcome the phytotoxicity. So that phytotoxicity stops during composting process, and the product that you get, that is free of those phytotoxic substances. The composting process leads to the final production of carbon dioxide, water, minerals, and stabilized organic matter, which we call as the compost, which is our ultimate goal. We want to have stabilized organic matter which has undergone decomposition. So of course, when composting takes place, there is the decomposition, and during decomposition, there is the release of some carbon dioxide, some water, and some minerals, which of course the organic matter has many minerals inside. So when those undergo decomposition, those minerals are released, right? And the stabilized organic matter that we get, that is called as compost, which is a sort of organic fertilizer.
The process starts with the oxidation of easily degradable organic matter. This first phase is called decomposition. So the moment you add some organic matter to the soil, it starts decomposing. And first of all, the easily degradable organic matter undergoes decomposition, right? So when you add a mixture of different materials, different components, different substrates to the soil, the easily degradable material undergoes quick decomposition, right? Whereas those which are relatively resistant to decomposition, they they undergo decomposition at a later stage, right? So easily degradable organic matter undergoes decomposition in the first phase, which is called as decomposition. The second phase, stabilization, that includes not only the mineralization of slowly degradable molecules, but also includes more complex processes such as the humification of lignocellulosic compounds. So second phase में क्या होता है? So what happens in the second phase is that the stabilization takes place, and in this case, the material which has decomposed to some extent, that goes undergoes mineralization, or the material which is relatively resistant to decomposition in the first phase now starts decomposing at this stage, and that which already has decomposed, that starts the process of humification. And you know humification, what does the humification means? We have studied in carbon chapter the formation of humus. So there we discussed how the simple compounds, they join together and they give rise to, the humus, a complex compound. So we start with the decomposition, then comes the stabilization, and finally, from a technical point of view, the composting process is stopped at a phase in which the organic matter still is present in a relatively large quantity, more than 50% of the starting amount. So अभी जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर था उस मटेरियल में जो आपने डाला था, अभी उसका 50% अभी भी ऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद होता है जब कंपोस्टिंग का प्रोसेस रुक जाता है, ठीक है? Decomposition goes on, but the composting process that speed से नहीं कंटिन्यू करती. So पहले easily degradable compounds जो होते हैं वो डिग्रेड होते हैं, फिर उस स्टेबलाइजेशन स्टेज में उससे जो relatively resistant compounds होते हैं वो decompose होते हैं, और वो those result in a, you can say, a stable compound which is we call as humus, or we say it as compost. That compost still has about 50% of the starting amount of organic matter. अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे, यहाँ पे ना रुके, कंडीशंस उसे अलाउ करती रहें, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस अलाउ दैट, देन क्या होगा? ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी कंप्लीटली मिनरलाइज्ड. सो ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो लाजमी रुक जाएगा. अगर वहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल रहेंगी तो वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल है, वहाँ पे टेम्परेचर सूटेबल है, वहाँ पे एरेशन अवेलेबल है, तो ये जो कंपोस्टिंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा हत्ता के सारा मैटर जो वहाँ पे था वो सारा मिनरलाइज हो जाएगा into inorganic compounds. The main product is called compost, which may be defined as stabilized and sanitized product of composting, compatible and beneficial to plant growth. So इस तरह से हमें जो product मिलती है that is stable,
and that is sanitized. इसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं वो निकल गए हैं, इसमें से जो वीड सीड्स हैं वो भी ड्यू टू हाई टेम्परेचर किल हो जाते हैं, सो वो वीड सीड भी आगे नहीं जाते हैं. So there are many benefits of that composting, which we will discuss now. So what has been done? Compost has undergone. क्या हुआ है composting में? It has undergone an initial rapid stage of decomposition. जैसा कि मैंने आपको explain किया था कि जो easily degradable compounds होते हैं वो सबसे पहले degrade होते हैं, बाद में उससे जो रेजिस्टेंट होते हैं, बाद में उससे रेजिस्टेंट जो होते हैं, हत्ता कि एक स्टेज ऐसी आती है कि कुछ कंपाउंड्स बिल्कुल बच जाते हैं जो डिग्रेड नहीं होते हैं. सो एंड देन ए स्टेज ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड an incomplete process of humidification. So this is what happens during composting process. So an initial stage of rapid decomposition, then a stage of stabilization and an incomplete process of humidification. उस स्टेज पे फिर complex compound बनने शुरू हो जाते हैं जिसको हम ultimately humus कहते हैं, which is relatively resistant to decomposition. The transformation of fresh organic matter into compost is carried out mainly for 3 reasons. क्यों करते हैं हम? हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में चेंज करें? सो इसकी मेजर 3 रीजंस होती हैं. नंबर 1, to overcome the phytotoxicity of fresh non-stabilized organic matter. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप फ्रेश नॉन स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर फील्ड में अप्लाई कर देंगे जहां पे क्रॉप है, तो वो जब उसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी तो वो सर्टेन फाइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जो आपकी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं. सो उसको ओवरकम करने के लिए हम पहले ही उसको डिकम्पोज कर लेते हैं, उसकी कंपोस्टिंग कर लेते हैं ताकि इस फाइटोटॉक्सिसिटी से बचा जा सके. देन to reduce the presence of agents that are pathogenic to man, animals, and plants to a level that does not further constitute a health risk. उसमें मौजूद viruses, bacteria, fungi, parasites, and even the weed seeds, ये सारी जो चीजें, खास तौर पे ये जो pathogens होते हैं, जब टेम्परेचर हाई होता है ड्यूरिंग कंपोस्टिंग, so due to that high temperature, those pathogens are killed and they are now no more harmful for the man, animals or plants and do not cause any health risk for any of these living organisms. ठीक है? या तो वो completely खत्म हो जाते हैं, या अगर completely खत्म नहीं होते कम से कम उनकी पॉपुलेशन इतनी कम जरूर हो जाती है कि वो हार्मफुल नहीं रहती है. And third one is to produce an organic fertilizer or a soil conditioner, recycling organic wastes and biomass. So this is the third purpose of that, कि हम इस तरह से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमें मिल जाती है जो सॉइल कंडीशनर का काम करती है. यू नो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑलवेज improves the physical properties of soil, and the waste material, the organic waste is recycled, and the biomass, bacteria, viruses, fungi, all these are recycled. For example, if we cut the grass of a lawn, that grass is of no use. So we can convert it through composting, convert it into an organic fertilizer, which can be used for kitchen gardening or for any crop growth as an organic fertilizer. ठीक है? एंड ये मैं पॉइंट आपको पहले ही बता चुका हूँ. ये दूसरे पॉइंट में मैंने जिक्र कर दिया था कि वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, से अगर फार्म है आपका, तो फार्म पे वो जो भी उनका गंद बला होता है वो सारा इकट्ठा करते हैं. बचा हुआ चारा होता है, किचन का वेस्ट होता है, जो भी गंद बला, इवन काउ डंग होता है,
वो सारा जो है वो सारा इकट्ठा करते हैं, कि आप फार्म या मेन्योर कहते हैं, ठीक है। तो उसको उसमें ऑफ कोर्स उसमें सर्टन वीड्स के सीड भी होते हैं, अगर आप उसको एज सच फील्ड में डाल देंगे तो वो वीड्स भी फील्ड में चली जाएंगी। तो जब आप कंपोस्टिंग करते हैं तो कंपोस्टिंग के दौरान टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो हाई टेम्परेचर उन वीड सीड्स को भी किल कर देता है, ठीक है। दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ द कंपोस्टिंग। सो सबस्ट्रेट्स कौन से हो सकते हैं जो डिकम्पोज होते हैं एक्चुअली ड्यूरिंग कंपोस्टिंग प्रोसेस? So the decay of materials during composting follows the common biochemical pathways of any other degradation process. कोई भी degradation का जो process है, of course common sense की चीज है कि जो easy, जो simplest compound है वो सबसे पहले degrade होगा, उससे बाद उससे complex compound, उसके बाद उससे complex compound, हत्ता के एक स्टेज ऐसी आएगी कि कुछ कंपाउंड ऐसे बच जाएंगे which are resistant to decomposition, इन्हें हम recalcitrants भी कहते हैं, ठीक है। So the substrates, whatsoever the substrates you add, those substrates undergo composting process following the common biochemical pathway। जो common biochemical pathway है उसी के हिसाब से वो decompose होते हैं। यूजुअली एक चीज याद रखें कि यूजुअली ये जो सबस्ट्रेट्स होते हैं दीज आर बायोजेनिक। व्हेन वी से बायोजेनिक इट मींस दे ओरिजिनेट फ्रॉम बायोलॉजिकल एक्टिविटी सच एज फोटोसिंथेसिस और कंज्यूमर बायोमास। या तो वो फोटोसिंथेसिस से या उस फोटोसिंथेसिस से बनने वाली चीजों को जो कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं उन कंज्यूमर्स का बायोमास, ठीक है। वो एनिमल्स, डेड एनिमल्स या डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देमसेल्व्स और फोटोसिंथेसिस से बनने वाली वो सारी चीजें जो हैं दोज आर बायोजेनिक एंड दोज एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर कंपोस्टिंग। अब आप प्लास्टिक को ये उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिकॉज इट इज नॉट बायोजेनिक। यूजुअली जो मटेरियल दैट अंडरगोज डिकम्पोजिशन or composting, usually those substrates are biogenic. That means essentially that all available substrates are either of plant, animal or microbial origin, ठीक है। so वो एनिमल वेस्ट हो सकते हैं, उसकी एक्सक्रीशन हो सकती है या खुद डेड एनिमल हो सकता है, या सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो डिकम्पोज कर रहे हैं और साथ में खुद भी मर रहे हैं, नए भी जनरेट हो रहे हैं, वो खुद हो सकते हैं, या प्लांट मटेरियल खुद हो सकता है। Generally, plant materials make up the highest amount, while animal tissues or microbial components are only minor fractions of any mixture, but usually are most nutrient rich fraction. So आम तौर पे जो कंपोस्टिंग करते हैं वो प्लांट मटेरियल ही होता है, कुछ कंपोजिशन उसमें माइक्रोबियल टिश्यूज की जरूर हो सकती है विच इज ऑफ माइनर फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो होती है ये भी बड़ी न्यूट्रिएंट रिच होती है, इनमें भी बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो कंपोस्टिंग आप करते हैं जनरली दैट इज ऑफ प्लांट ओरिजिन। आप ट्रीज की प्रूनिंग कर रहे हैं, आप वैसे ही एक फिजा का मौसम होता है उसमें पत्ते बहुत गिरते हैं, उन पत्तों को इकट्ठे करके आप एक जगह पे ले जाते हैं और उसकी कंपोस्टिंग कर लेते हैं जिससे वो एक खास आपकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाती है जिसको आप फिर क्रॉप ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन हमारी यूनिवर्सिटी में भी सिस्टम है, ये आपका जो एग्रोनॉमी का फील्ड है वहां पे इन्होंने बड़े बड़े पिट्स खोदे हुए हैं, तो जो ये वेस्ट मटेरियल होता है जो ऑर्गेनिक होता है विच इज डिकम्पोजेबल, वो मटेरियल डेली इकट्ठा करके वहां पे फेंक दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से फिर जिस पिट में डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाती है उस पिट में से उसे निकाल के क्रॉप ग्रोथ के लिए फील्ड में डाल दिया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से
वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी रिसाइकलिंग भी हो रही है और उसको उससे हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट भी मिल रही है। अदरवाइज इतने पत्ते या इतना ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको वेस्ट करना भी हमारे लिए, डिस्पोज ऑफ करना भी हमारे लिए एक मसला होना था। सो कंपोस्टिंग के सिस्टम्स क्या हैं, कंपोस्टिंग किस किस तरह से हो सकती है? सो द कंपोस्ट systems are categorized based on whether they are batch or continuous process. So दो किस्म की कंपोस्टिंग हो सकती है, या वो बैच कंपोस्टिंग होगी या वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा। सो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं अभी आपको कि बैच और कंटिन्यूअस से क्या मुराद है। पहले हम बैच कंपोस्टिंग सिस्टम की बात करते हैं। सो इन बैच कंपोस्टिंग सिस्टम a given quantity of substrate is allowed to progress through the stage of temperature and microbial succession, finishing with the stabilization stage. So batch system में ऐसे है, आप समझ लें कि एक खास मटेरियल लिया जाता है और उस गिवन क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट या मटेरियल को डिकम्पोज कर लिया जाता है। उसमें कोई चीज मतलब फर्दर मटेरियल ऐड नहीं किया जाता, एक खास मटेरियल लेके उसको डिकम्पोज कर लिया जाता है। और वो जाहिर है जब वो डिकम्पोज होता है तो दैट पासिस थ्रू स्टेजेस ऑफ टेम्परेचर एंड माइक्रोबियल सक्सेशन। ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज करते हैं, हत्ता कि वो स्टेबलाइजेशन स्टेज पे पहुंच जाता है। दिस इज analogous to growing microorganisms in a flask of nutrients in which no additional nutrients are added or any waste removed. या आप ऐसे ही समझ लें कि एक फ्लास्क में आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालते हैं और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। अब ना उस फ्लास्क में से आप कुछ निकालते हैं ना उस फ्लास्क में आप कुछ डालते हैं, बस उसको कंट्रोल टेम्परेचर पे आप रखते हैं, हत्ता के कुछ देर के बाद उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह से बैच सिस्टम होता है कि आप एक गिवन क्वांटिटी सबस्ट्रेट की जो है उसको आप डिकम्पोज कर लेते हैं। ठीक है। The simplest batch system is the static pile where the materials are not mechanically turned or inverted. So इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो है कि ये जो आप ढेर लगा देते हैं एक जगह पे, स्टैटिक पाइल, याद रखें स्टैटिक पाइल, जो जिसको आप मिक्स करने की कोशिश नहीं करते हैं मैकेनिकली या मैनुअली, बल्कि आप एक जगह पे ढेर लगा देते हैं और फिर 6 महीने बाद आप उसको देखते हैं कि वो डिकम्पोज हो चुका होता है। दिस इज बैच सिस्टम के उसमें आप मजीद मटेरियल ऐड नहीं कर रहे होते या उसमें से डिकम्पोज मटेरियल निकाल नहीं रहे होते। दैट इज बैच सिस्टम। Substrates are merely stacked to produce a pile that is roughly triangular or trapezoidal in shape. ये मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वो एक त्रिकोण की तरह का आप एक खास शक्ल में वो ढेर बना देते हैं जो डिकम्पोज होता रहता है। Essentially the center of the pile becomes anaerobic. इससे होता क्या है, क्योंकि आप उसकी मिक्सिंग नहीं कर रहे, मैंने स्टैटिक पाइल का लफ्ज यूज किया था, तो इस वजह से ये होता है कि उसका जो सेंटर का पोर्शन होता है that becomes anaerobic and the rate of substrate decomposition decreases to the rate at which oxygen diffuses into the pile. और फिर ये होता है कि ऑक्सीजन की एंट्री, वो जो सेंटर का पाइल है that becomes पाइल का जो सेंटर है that becomes anaerobic and the rate of substrate decomposition decreases. लिहाजा सबस्ट्रेट की डिकम्पोजिशन का रेट स्लो डाउन हो जाता है। एंड engineered improvement of the static pile is the windrow. इस स्टैटिक पाइल को उन्होंने इसमें इंजीनियरिंग की है और क्या किया है, इसको विंडरो में चेंज कर दिया है। सो वन वाज द बैच सिस्टम, द अदर इज द विंडरो। विंडरो में क्या करते हैं एक्चुअली, ए विंडरो इज एन इलोंगेटेड पाइल, लंबा ढेर लगाया जाता है, ठीक है, constructed to handle the larger volumes of compost substrates generated by municipalities and industries.
कि इंडस्ट्री से या म्यूनिसिपैलिटी से जो वेस्ट जनरेट होता है उसका ऊंचा ढेर लगाने के बजाय लंबा ढेर लगाते हैं। एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो लंबा होता है, वो फिर हेल्प करता है आपको कि आप ट्रैक्टर के साथ या मैनुअली किसी मशीन, मैनुअली भी बेहतर होता है कि मैकेनिकली, क्योंकि वो ज्यादा होता है, तो किसी मशीन के साथ आप उसको मिक्स कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद आप उसको मिक्सिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहती है, लिहाजा उसकी डिकम्पोजिशन कंपैरेटिवली क्विक होती है। टर्निंग द विंडो periodically ensures the outer cooler and drier parts of the pile are rotated to the center of the pile where most rapid microbial activity develops. So center में microbial activity ज्यादा हो रही होती है, so आप क्या करते हैं, आप उसको मिक्स कर देते हैं कि ट्रैक्टर से या किसी चीज से उसको जब मिक्स करते हैं तो वो सारी एक्टिविटी हर जगह पे यूनिफॉर्म हो रही होती है, हर जगह उसको ऑक्सीजन मिलती है, लिहाजा डिकम्पोजिशन क्विकली हो जाती है। Turning is achieved by simply mixing the contents of the pile with hand tool, as in case of small backyard pile. आप अपने घर के सहन में पीछे आपका जो बैक का लान है वहां पे आप कर सकते हैं कि किचन वगैरह का वेस्ट, आपने घर के पत्ते जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे करते रहें और उनको किसी चीज के साथ मिक्स करते हैं, लेकिन याद रखें कि हाथ से नहीं करना है क्योंकि वो गर्म होगा। किसी कस्सी के साथ, या ये वो क्या उसे होती है वो जिसके साथ ये वीट स्ट्रा को उठाते हैं, तिरंगली कहते हैं उसे, अब मुझे नहीं पता आप लोग उसको जानते हैं या नहीं जानते, जिसके साथ वीट स्ट्रा जो तूड़ी होती है उसे इकट्ठा करते हैं, उसके साथ आप उसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। ये मैं वो आपको उसकी शेप्स दिखा रहा हूँ। ये देखें स्टैटिक पाइल है, इस तरह से आप इकट्ठा करते थे हम उसको ढेर को। और ये विंडरो कंपोस्टिंग है जिसमें मैंने कहा था कि आप लंबे ढेर लगाते हैं। ठीक है। और ये आप देखें मशीन है जो उसको मिक्स कर रही है। ठीक है। उस मटेरियल को इस तरह से आफ्टर सम टाइम वो मिक्स करती रहती है, जिससे इसका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्विक हो जाता है। So this was about the batch composting system. क्या आप उसमें से ना कुछ निकाल रहे हैं ना ऐड कर रहे हैं, एक दफा जो डालना था वो डाल दिया और फिर उसको आप या तो स्टैटिक पड़ा रहने देते हैं या आप उसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, विंडरो बना लेते हैं। सो दूसरी ऑप्शन है कंटिन्यूअस कंपोस्टिंग सिस्टम की। सो वन इज द बैच सिस्टम एंड सेकंड इज द कंटिन्यूअस कंपोस्टिंग सिस्टम। So continuous composting system में क्या होता है? In continuous composting, substrates are continually added and the product removed from the reactor. आप ऐसे ही समझ लें जैसे अब कभी आप अपना वो आटा पिसवाने के लिए गए हों तो आप देखते हैं कि ऊपर से वो दाने डालते जाते हैं और नीचे से आटा निकालते जाते हैं। That is continuous, sort of a continuous process. वो decomposition तो नहीं हो रही, लेकिन that is a continuous process. This is analogous to continuous or chemostat culture of microorganisms. So इसमें ये बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जो प्रोसेसेस होते जाते हैं और आप साथ साथ उस कल्चर को अलग करते चले जाते हैं। It consists of continuous supply of decomposable substrates kept under strict regulation. So इसमें आप उसको एक तरह से रेगुलेट कर लेते हैं। मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आप समझ सकेंगे। इस तरह से रेगुलेट करते हैं कि जब आप एक एंड से रॉ ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो जब तक वो दूसरे एंड पे पहुंचता है तो उस वक्त तक उसकी डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो चुकी होती है, लिहाजा वो आप बाहर निकाल के यूज कर लेते हैं। पीछे से आप और मटेरियल डाल देते हैं, वो वहां तक पहुंचता है, तो ऐसे चलता रहता है। ठीक है। इसकी बड़ी मैंने आपको कॉमन एग्जांपल वो चक्की की दी है, वहां पे हाल तो वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं हो रही, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। दिस इज कॉमनली अचीव्ड by enclosing the entire process in a reactor. कैसे होता है ये फिर
कि आप सारा प्रोसेस किसी रिएक्टर में कर रहे होते हैं, किसी वेसल में कर रहे होते हैं, ओपन में नहीं कर रहे होते। Substrates are continuously fed into the reactor and move through the reactor as decomposition proceeds. So जैसे जैसे decomposition बढ़ती जाती है वो मटेरियल आगे को मूव करता चला जाता है, ठीक है। Vertical or horizontal flow systems have been designed to aerate and mix the substrate. अब उसको वर्टिकली भी फ्लो किया जा सकता है और हॉरिजेंटली भी उसको मूव किया जा सकता है ताकि वो मिक्स होता रहे और उसमें ऑक्सीजन शामिल होती रहे। ये है एक तो सिस्टम है, ये पहले ऊपर मैंने आपको बताया है एरेटेड पाइल कंपोस्टिंग, कि आप जो पाइल्स हैं उसके नीचे आप पाइप बरी कर देते हैं और उन पाइप्स के थ्रू, वो परफोरेटेड पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू आप, जो हमने कहा था कि वो सेंटर से पाइल जो है वो एनारोबिक हो जाता है, इन पाइप्स के थ्रू आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ये वो कंटिन्यूअस कंपोस्टिंग का प्रोसेस है। आप ये देखें, आप इस तरफ से उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डालते हैं, इसमें अंदर टेम्परेचर कंट्रोल है, मॉइस्चर की ये प्रोविजन है, ये इसको मिक्स कर रहा है, ठीक है। वो मिक्स करते करते जब ये एंड तक पहुंचेगा तो उस वक्त तक ये मटेरियल डिकम्पोज हो चुका होगा। पीछे से आप और मटेरियल डालते रहते हैं और एंड से आपको डिकम्पोज्ड मटेरियल मिलता रहता है। अब मैंने कहा था कि इसमें ये सारा प्रोसेस जो कंपोस्टिंग है करता कौन है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। सो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। बैक्टीरिया हैं जी। The importance of non-mycelial bacteria during the composting process was long neglected. पहले लोग समझते थे कि नहीं, ये बैक्टीरिया का इसमें कोई काम नहीं है, ये एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई हैं जो इसको डिकम्पोज करती हैं क्योंकि उन्हें आमतौर पे इसमें एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई ही नजर आती थी। लेकिन अब लोगों को बड़ी अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि ऐसे नहीं है, बैक्टीरिया का भी इसमें बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, बल्कि इमीडिएटली जो डिकम्पोजिशन स्टार्ट होती है वो बैक्टीरिया ही से स्टार्ट होती है। In some composting processes, for example, the composting of sewage sludge, bacteria are more important than fungi from the beginning. ठीक है? If temperatures are kept under 60 degrees centigrade, more than 40% of the solids are degraded within the first 7 days, almost entirely through microbial bacterial activity. ठीक है? So अगर टेम्परेचर 60 डिग्री आप रख लें तो तकरीबन 40% या इससे कुछ ज्यादा जो मटेरियल है वो पहले 7 दिन में डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। सो जो इजीली डिग्रेडेबल कंपोनेंट्स हैं वो पहले 7 दिन में डिग्रेड हो जाएंगे। सो शुरू में बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करेगा, उसके बाद फंजाई स्टार्ट करेंगे, जो रेजिस्टेंट बच गए होंगे उनको डिग्रेड करना, उसके बाद एक्टिनोमाइसीट्स आ जाएंगे जो लिग्निन वगैरह को डिग्रेड करेंगे। सो इस तरह से एक प्रोसेस चलता है और ये साइकिल चलता रहता है कि ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन टेम्परेचर वंस गोज अप, देन इट कम्स डाउन, अगेन इट गोज अप एंड देन कम्स डाउन। जब डिकम्पोजिशन फास्ट हो रही होती है तो टेम्परेचर अप होता है, जब डिकम्पोजिशन स्लो होती है तो टेम्परेचर स्लो डाउन हो जाता है। The temperature range from 50 to 65 degrees centigrade is of selective advantage for bacteria and in particular for the genus Bacillus. ठीक है। सो 50 से 65 डिग्री तक का टेम्परेचर बैक्टीरिया के लिए बड़ा सूटेबल है, लिहाजा खासतौर पे बेसिलस जीनस के जो बैक्टीरिया हैं वो बड़ा क्विकली ग्रो करते हैं इस टेम्परेचर पे और डिकम्पोजिशन या कंपोस्टिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। When temperature exceeds 65 degrees centigrade, then another bacterial species, Bacillus styrothermophilus, often is dominant, almost like in a pure culture. ठीक है, कि जो थर्मोफाइल्स होते हैं, यू नो कि बैक्टीरिया की 3 किस्में होती हैं, ये साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स।
साइक्रोफाइल्स होते हैं जो लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, मीजोफाइल जो मीडियम टेम्परेचर, और थर्मोफाइल्स जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं. Most probably, obligate anaerobic bacteria are also common in composts, but so far very little information is available. ख्याल किया जाता है कि कुछ anaerobic बैक्टीरिया भी हैं जो कंपोस्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. दूसरे नंबर पे एक्टिनोबैक्टीरिया आते हैं या एक्टिनोमाइसीट्स कह सकते हैं आप. These prefer neutral or slightly alkaline pH and are able to degrade relatively complex substrates. Several are thermotolerant or even thermophilic. ना सिर्फ हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं बल्कि वो लाइक करते हैं कि हाई टेम्परेचर हो, वहां पे उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, विद ए टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड. Most actinobacteria grow best when the substrate is moist and the oxygen supply is good. Then आर्किया आ जाते हैं. आर्किया एक नया ग्रुप है एक्चुअली जिसमें कहा जाता है कि ये जनरली एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो करते हैं, और आर्किया को अब एक अलग इंडिपेंडेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया गया है. पहले इसको बैक्टीरिया ही में शामिल करते थे लेकिन अब इसको अलग ग्रुप में शामिल किया गया है और इसमें जनरली एक्सट्रीमोफाइल्स आते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली देखा गया है कि इसमें कुछ जेनेटिक्स या डीएनए ऐसा है या जीन्स ऐसे हैं जो ना बैक्टीरिया में होते हैं, ना जो बैक्टीरिया में भी नहीं होते और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी नहीं, यानी प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होते, यूकैरियोट्स में भी नहीं होते. सो इसलिए इसका एक अलग ग्रुप बना दिया गया है जिसे हम आर्किया कहते हैं या यूकेरिया कहते हैं. सो आर्किया जनरली आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए इतना काफी है कि आर्किया जनरली एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं. Not only high temperature, rather any extreme conditions. Those may be very high salinity, very high temperature, very high pH, or very low temperature, or under extreme conditions, these microorganisms go. So these are known to be thermophilic or even hyperthermophilic. They have primarily been isolated from hypothermal vents. Even जो आपके ओशंस होती हैं, ओशंस में के बाज़ जगहों पे जब टेम्परेचर जमीन के नीचे बहुत सारी गैसेस होती हैं, जब कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वो गैसेस इरप्ट होती हैं तो वहां से वेंट्स बनते हैं. वो जो वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है वहां पर भी ये वाले ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं. Only in a few cases archaea have been isolated from composts, but since considerable methanogenesis in compost piles has recently been reported, therefore it is likely that methanogenic archaea may be found if specifically searched for. मैंने ये बात की है कि although इतने ज्यादा आर्किया कंपोस्ट से आइसोलेट नहीं किए गए, लेकिन कंपोस्टिंग के प्रोसेस के दौरान सफिशिएंट मिथेनोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है. मिथेनोजेनेसिस का मतलब द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस. ठीक है. सो दिस मिथेनोजेनिक प्रोसेस, इसका मतलब है कि अगर मिथेनोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो फिर इसका मतलब है वहां पे ऐसे आर्किया या ऐसे मिथेनोजेनिक आर्किया मौजूद हैं जो मिथेनोजेनिक का प्रोसेस कर रहे हैं. सो अगर कोशिश की जाए तो उनको वहां से आइसोलेट किया जा सकता है. The reason for the relatively low abundance of archaea probably is that they are usually oligotrophic. ठीक है. सो इस वजह से इनका कोई इनकी abundance जो होती है वो कम होती है. Their generation times are much higher than those of bacteria, which makes them unsuited to rapidly changing conditions.
क्योंकि उनका जनरेशन टाइम ज़्यादा है, इसलिए ये जल्दी जो रैपिडली चेंजिंग कंडीशंस हैं उसको एक्लेमेटाइज नहीं करते हैं, उसको अडेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी इन्होंने मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनने में ज़्यादा टाइम लेते हैं कंपेयर विद द बैक्टीरिया। सो दैट्स व्हाई इनकी जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली लेस होती है। Then comes the fungi. During the starting phase, fungi compete with bacteria for the easily available substrates. इसका कंपटीशन होता है बैक्टीरिया के साथ, and generally since the maximum specific growth rate of bacteria exceed that of fungi by 1 order of magnitude, इसलिए बैक्टीरिया डोमिनेट कर जाते हैं। बैक्टीरिया क्योंकि तेजी से ग्रो करते हैं ये फंजाई की निस्बत, इसलिए इनिशियल स्टेज में जो डिकम्पोजिशन हो रही होती है वो बैक्टीरिया से हो रही होती है। आल्सो a good supply of oxygen is more important for fungi than for bacteria, and even in force aerated systems temporary anoxic conditions may occur. fungi ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, सो इसलिए हत्ता कि आप अगर वहाँ पे एयर दे भी रहे हों तब भी कोई ना कोई जगह ऐसी बच जाती है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, सो वहाँ पे फिर फंजाई नहीं ग्रो कर सकती, बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। सो इनिशियल स्टेज में जो फिर इनका कंपटीशन होता है बैक्टीरिया के साथ, उसमें नॉर्मली बैक्टीरिया विन करते हैं और बैक्टीरियल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लिहाजा वो ज़्यादा डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं। For these reasons, but also because of the lower thermotolerance, fungi play a negligible role during the thermophilic phase. ठीक है, सो थर्मोफिलिक फेज में जिस वक्त टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है उस वक्त फंजाई का रोल बहुत कम होता है, उस वक्त ज्यादा रोल या एक्टिनोमाइसीड्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं या आर्किया होते हैं। One exception is the composting of substrates that are particularly rich in cellulose and in lignin. In that case, fungi remains most important throughout the entire process. अगर वो कंपाउंड ऐसा है जिसमें सेलुलोज या लिग्निन ज्यादा है तो उस वक्त क्या होगा कि फिर सारे प्रोसेस में फंजाई ज्यादा डोमिनेट करती है डिकम्पोजिशन में। So this is what is composting. Now, here in our university, we have tried to value add that organic waste. Means हम उसकी decomposition तो कर ली, अब उसको मैंने कहा था कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाती है, तो उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को मजीद बेहतर बनाने के लिए हम उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड करके उसको और ज्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल अगर किसी को इत्तेफाक हुआ हो फील्ड में जाने का तो वहां आप देख सकते हैं कि नवीद साहब का कोई काम चल रहा है जिसमें वो गोबर वगैरह को या प्रेस मार्ट को उसमें सल्फर वगैरह ऐड करते हैं, कुछ दूसरी चीजें ऐड करते हैं और उसकी कंपोस्टिंग करके एक बेहतर न्यूट्रिशन वाली एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से मैं ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आज का चैलेंज क्या है हमारा, टू रिप्लेनिश आवर एग्जॉस्टिंग सॉइल्स विद बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स, कि हम सॉइल्स से क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और फर्टिलाइजर्स भी कम डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी कम डाल रहे हैं। सो इसलिए हमारा पर्पस है कि हम किसी तरह से अपनी सॉइल्स को बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स जो उसमें मौजूद होने चाहिए उनसे एग्जॉस्ट ना होने दें, उसको रिप्लेनिश करें विद बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स। एंड आप कहेंगे कि जी आप फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स अलोन कैन नॉट डू दिस जॉब, ये मैं बड़ी दफा बात कर चुका हूं। सो वी नीड इंटीग्रेशन ऑफ केमिकल, ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर्स टू मीट द चैलेंज। हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स भी डालनी चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी डालनी चाहिए और बायो फर्टिलाइजर्स भी डालनी चाहिए टू मीट द चैलेंज। चैलेंज क्या है हमारा,
to replenish our exhausting soils with balanced nutrients, कि हमने अपनी कमिंग जनरेशन्स के लिए जो अपनी सॉइल्स छोड़नी है वो डिप्लीटेड सॉइल्स नहीं छोड़नी है, बल्कि अच्छी फर्टाइल सॉइल्स छोड़नी है। सो क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट को ऐसा डाल दें तो क्या होगा। उसमें देखें, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें ऑर्गेनिक वेस्ट अगर ऐसा सच है तो क्या होगा, वो ये होगा कि एक तो आपको वो बहुत ज्यादा चाहिए होगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा क्योंकि आपको ज्यादा चाहिए होगा, उसमें न्यूट्रिशन कम होगी। जब आप उसको डीकम्पोज कर लेते हैं तो फिर उसमें न्यूट्रिशन बढ़ जाती है, और फिर अगर आप उसमें खुद कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें तो बजाय इसके कि 2 ट्रक डालें आप 1 ट्रक डालेंगे तो उसमें से आपको डिजायर्ड जो है न्यूट्रिशन वो मिल जाएगी। और इतने ज्यादा मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना भी इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होता। फिर अगर आप देखें, अगर नेचुरल कंपोस्टिंग है जो ऐसे आप करते हैं गाँव में ढेर लगा के, ये यूजुअली 90 to 120 डेज लेती है, लेकिन अगर आप मैकेनाइज्ड कंपोस्टिंग कर लें तो वो 1 to 2 वीक्स में आप अगर प्रॉपरली सारी प्रॉपर कंडीशंस उसको प्रोवाइड कर दें तो 1 से 2 हफ्ते में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, आप एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट आप फ्रूट वेस्ट लेते हैं, आप उसमें से जूस वगैरह निकाल के उसको आप ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद आप उसको ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करके एक वेसल जिसमें चीजें टेम्परेचर मॉइस्चर वगैरह कंट्रोल हो उसमें डालें, ये मूव करता रहता है और वो मटेरियल इसमें मिक्स होता रहता है। वो जैसे मैंने आपको बैच सिस्टम की एग्जांपल दी थी, और आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स यू गेट द completed compost product. This system is available at our campus. हमारे डिपार्टमेंट में बैक जो हमारा एरिया है वहां पे ये अवेलेबल है। अब वैल्यू एडिशन हम क्यों करते हैं, हम क्यों उसमें न्यूट्रिशन या चीजें डालते हैं? टू एनहांस इट्स इफेक्टिवनेस, टू रिड्यूस क्वांटिटीज टू बी एडेड, के बजाय 3 ट्रक डालने के हम 1 ट्रक से काम कर लें, या 3 बोरियों के 1 बोरी डाल लें। बेटर क्रॉप रिस्पॉन्स, सो बेटर अडेप्टेबिलिटी बाय द फार्मर्स, जब उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होगी, यूजफुल प्रोडक्ट्स ज्यादा होंगी तो उससे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, लिहाजा ज्यादा चांसेस होंगे कि फार्मर उसको अडेप्ट कर लें। एंड आल्सो इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी उसकी। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि ये प्रोडक्ट थी जो हमने वैसे बनाई, और ये है उसकी वैल्यू एडिशन के बाद बन गई, जब उसमें वो सारी चीजें डाली तो यू कैन सी द डिफरेंस। अब फार्मर इसको प्रेफर करेगा, इसकी एप्लीकेशन इजी होगी, इसकी एप्लीकेशन मुश्किल होगी, ठीक है। अब वो वैल्यू एडिशन किस चीज से की जा सकती है? जब वो कंपोस्ट मुकम्मल हो गया या ड्यूरिंग कंपोस्टिंग, यू कैन ब्लेंड इट विद न्यूट्रिएंट्स and or hormones or their precursors, ठीक है, आप ऑक्सन्स, जिब्रालिन्स, साइटोकाइनिन्स ये डाल सकते हैं, आप उसमें नाइट्रोजन यूरिया डाल सकते हैं, आप उसमें फास्फोरस डाल सकते हैं जैसे रॉक फॉस्फेट है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स से आप उसको एनरिच कर सकते हैं, या आप उसमें प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग डाइजोबैक्टीरिया डाल सकते हैं, या उनके मेटाबोलाइट्स ऐड कर सकते हैं। Adding anything to that recycled waste or to that compost is actually the value addition. और इस वैल्यू एडिशन से क्या होगा, अगर आप उसमें न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स वगैरह डाल रहे हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसको आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहेंगे, और अगर आप उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी डाल रहे हैं तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगी उसको आप बायो फर्टिलाइजर कहेंगे, ठीक है, आप ये पढ़ चुके हैं डिटेल से। So these organic fertilizers or biofertilizers, or you can say this value addition is needed for enhancing effectiveness, reducing bulk volume and making economical, ठीक है। इस वजह से हम ये काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ मिसाल है, मिसाल के तौर पे अगर हम वैल्यू एडिशन करते हैं विद NPK, कि हम उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम डालते हैं,
तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका, तो आप देख सकते हैं कि मोर देन और इक्वल टू 25% नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम सेविंग हो सकती है विदाउट कंप्रोमाइजिंग यील्ड। कि अगर आपने 4 बैग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के डालने थे, आप वो 4 बैग्स की बजाय आप अगर आप ये करें कि एक बैग जब कंपोस्ट बना रहे थे उसमें डाल दें इनका, तो आपको 3 बैग आपके बच जाएंगे। मोर देन 25% आपकी सेविंग हो सकती है। मोर देन 20, सॉरी, 3 की बजाय आप 4 बैग अगर वैसे डालने थे आपने, तो अब आप 3 बैग डालेंगे तो आपकी तकरीबन 25% NPK सेविंग हो जाएगी। ठीक है। रॉक फॉस्फेट से अगर आप उसको इनरिच कर दें तो दिस इज ए सोर्स ऑफ फास्फोरस, तो क्या होगा उससे, उसमें पी सॉल्युबलाइजेशन होगी, ज्यादा फास्फोरस अवेलेबिलिटी होगी और इसका रेजिडुअल इफेक्ट ज्यादा होगा। ये बाद में आने वाली क्रॉप्स के लिए भी यूजफुल होगी। अगर आप ट्रिप्टोफैन विच इज ए प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सन्स, अगर आप ट्रिप्टोफैन डाल देंगे तो क्या होगा, ऑक्सन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी which are useful for plant growth and yield and can give you better grain quality। और अगर आप पीजीपीआर डाल देंगे तो वो बायो फर्टिलाइजर बन जाएगी और हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं कि देयर विल बी बेटर प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड, बेटर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स पर्टिकुलरली अंडर स्ट्रेस कंडीशंस। आप देख सकते हैं दिस इज the yield with only chemical fertilizers, and this is, you can see the grains where you have applied value added compost. Enriched compost means you have value added it with some fertilizers और some nutrients। ठीक है। सो आप सीड का साइज देख सकते हैं जो ये इंडिकेट करता है कि आपको कंपोस्टिंग में भी अब फर्दर डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि कंपोस्टिंग की वैल्यू भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, आप उसको एनरिच कर सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी की बेनिफिट्स क्या हुई फिर कि यू कैन recycle the organic waste and convert it into a value added soil amendment, and that value added amendment can improve the soil health, and when soil health will be improved there will be better crops and clean environment। क्योंकि अदरवाइज वो ऑर्गेनिक वेस्ट वैसे ही पड़ा रहेगा अगर, तो उससे सर्टन नॉक्स टॉक्सिक गैसेज निकलेंगी जो फील्ड में जो एटमॉस्फेयर में जाएंगी और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है। सो दिस इज why we do the composting and why we should think of value adding the composting। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है, आजकल वो नवीद साहब से पूछें जब आपकी वो प्रैक्टिकल की क्लास लें कि वो क्या कर रहे हैं, कि वो वहाँ पे कंपोस्टिंग कर रहे हैं और उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें वो डाल रहे हैं, कुछ केमिकल्स डाल रहे हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो उसमें डाल रहे हैं, जिससे उनकी जो प्रोडक्ट बन रही है वो एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बन रही है which can be more useful even than the compost। ठीक है। so this is all for this chapter। किसी का इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले इससे पहले कि मैं आगे चलूं। any question please? Unmute your mic, introduce yourself and ask the question। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये है कि सेल अमेंडमेंट और सेल कंडीशनर में फ़र्क बता दें और ह्यूमस और कंपोस्ट में फ़र्क बता दें। जी, अमेंडमेंट नॉर्मली डाली जाती है, जनरली किसी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए आप डालते हैं नॉर्मली, लेकिन आप इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट डिफरेंस नहीं कहा जा सकता इसमें। आप कंडीशनर जो है वो नॉर्मली डाला जाता है सॉइल की फिजिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसके ऑर्गेनिक मैटर को, उसकी पोरोसिटी को, उसकी स्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। ठीक है। लेकिन आप अमेंडमेंट, कंडीशनर इज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट, उसको आप यूज कर सकते हैं ऐसा। और सर कंपोस्ट और ह्यूमस में? कंपोस्ट देखें, मैंने आपको बताया है कि जो कंपोस्ट है उसमें
एंड पे जाके अभी भी कुछ अनडिकम्पोज्ड मटेरियल भी होता है, और ह्यूमस है विच इज रिलेटिवली, जो उसकी स्टेबलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, दैट इज ह्यूमस विच इज रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू फर्दर डिकम्पोजिशन, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस। ठीक है, अगर अकेले ह्यूमस की आप बात करेंगे तो अकेला ह्यूमस जो है दैट इज रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू फर्दर डिकम्पोजिशन, लेकिन आल्दो उसकी फर्दर, अगर फर्दर आप उसकी फ्रैक्शनेशन कर सकते हैं इनटू ह्यूमंस, फुल्विक एसिड एंड अदर्स, लेकिन जनरली दैट इज रिलेटिवली स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो कंपोस्ट है इसमें मोस्टली स्टेबलाइज्ड होता है, लेकिन कुछ अनडिकम्पोज्ड मटेरियल भी इसमें मौजूद होता है। जी, एनी अदर सर क्वेश्चन? जी जी। सर जब हम कंपोस्टिंग करते हैं सर, हम्म तो एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों कंडीशन में करते हैं सर। हम्म तो सर कौन सा प्रोसेस मतलब सही कंपोस्टिंग अच्छी हो रही है सर, एरोबिक में या नॉन एरोबिक कंडीशन? देखिए, मैंने क्लियरली कहा था कि एरोबिक कंडीशंस चाहिए होती हैं कंपोस्टिंग के लिए, एरोबिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। मैंने जब मैंने डिफाइन किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि एरोबिक कंडीशंस चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि जो स्टैटिक फाइल होता है उसके दरमियान में कंडीशंस एनारोबिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर डिकम्पोजिशन परफेक्ट नहीं होती है। लिहाजा आप अगर उसको मिक्स कर दें ताकि उसकी एरेशन हो जाए तो वो डिकम्पोजिशन क्विक हो जाएगी। सो एरोबिक कंडीशंस, कंपोस्टिंग के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? आपने कंपोस्टिंग करनी है, चलिए आपको कॉमन, आप घर पे तजर्बा करना चाहते हैं, आपके किचन का वेस्ट है, जो भी चीजें ऑर्गेनिक चीजें हैं, एक छोटा सा गड्ढा खोद लें। ठीक है, जो आपके किचन की से बची हुई चीजें हैं, सब्जियों के छिलके वगैरह हैं, फ्रूट के छिलके वगैरह हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो सारी चीजें आप उसमें डालते जाएं। ठीक है, और अब आप देखें, एक कॉमन कॉमन सा तरीका बता रहा हूँ ना, वो आप उसमें डालते जाएं, और जब वो काफी हद तक आपका वो गड़ा भरने के करीब हो जाए, थोड़ी देर के बाद काफी सारा मटेरियल जमा हो जाए, तो उसके ऊपर आप एक सिंपल ब्रीक सी सॉइल का कैलिंग स्प्रे कर दें। सॉइल लेके उसके ऊपर थोड़ी सी ब्रीक सी तय लगा दें। ठीक है, और उसके ऊपर आप, अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आप ये जो गन्ने का रस होता है या शुगर सोल्यूशन, थोड़ा सा वो स्प्रे कर दें। अगर वो नहीं है तो वो आप सिंपल पानी, उसको मॉइस्चर थोड़ी सी सप्लाई कर दें। अगर आप फील करेंगे वो ड्राई है, अगर वो पहले ही मॉइस्ट है तो आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर आप फिर वो डालते रहें ऑर्गेनिक पेस्ट। ठीक है, तो वो जब और थोड़ी सी तय बन जाए, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। हत्ता कि इस तरह से वो ऑर्गेनिक वेस्ट, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, फिर ऑर्गेनिक वेस्ट, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, और इसको आपका जब वो जो गड़ा आपने बनाया था वो भर जाए, तो आप उसको ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर दें। ठीक है, और हर हफ्ते के बाद आप उस पे से प्लास्टिक उठाएं, और किसी, जैसे वो मैंने तरंगली बताई थी, किसी चीज के साथ, किसी चीज के साथ, खुद नहीं, साइड, हाथों से नहीं, मेरा मतलब उसको साइडों से उसको उठा के अंदर कर दें। मतलब जो गड़ा है उसकी साइडों में जो मटेरियल है उसको उठा के अंदर की तरफ करते रहे ना। हत्ता के इस तरह से जब आप हर हफ्ते के बाद करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सेंटर वाला है वो बाहर आ जाएगा, बाहर वाला सारा अंदर चला जाएगा। मीन्स आप उसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, उसकी एरेशन कर रहे हैं। दरमियान में अगर आप फील करें कि मॉइस्चर कम है, तो आप वैसे ही शुगर सोल्यूशन उसमें डाल दें या पानी थोड़ा सा डाल दें। ठीक है, और आफ्टर अबाउट 3-4 वीक्स आप देखेंगे कि आप पहचान नहीं सकेंगे कि इसमें क्या चीजें डाली थी मैंने। जब ये स्टेज आ जाए कि वो उसका कलर डार्क ब्राउन या ब्लैक सा हो जाए, तो आप समझ लें कि वो कंपोस्ट तैयार हो गया है। ठीक है, अब आप उसको अपने घर में, आपने पौधे लगाने हैं, आपने फूल ग्रो करने हैं, ये इनको यूज करें। दिस कैन बी ए वेरी गुड पॉटिंग मटेरियल। ठीक है, ये आपके कंपोस्ट का काम करेगा। अगर आप गड्ढा नहीं खोदना चाहते, आप एक ड्रम ले लें, उसमें डालते जाएं। ठीक है, और उस ड्रम में डालते जाएं, और उस ड्रम को हर दूसरे तीसरे दिन किसी चीज से मिक्स करते जाएं उस ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, ताकि उसको ऑक्सीजन भी मिलती रहे,
और मॉइस्चर को नॉर्मली आप जब वेजिटेबल्स का वेस्ट वगैरह डालते हैं तो वो मॉइस्ट होता है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा शुगर सोल्यूशन डाल देंगे तो वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपका ऑर्गेनिक मैटर ऐसा है जिसमें कार्बन ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल तूड़ी है, अगर आप उसका कंपोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपके ऑर्गेनिक वेस्ट में कार्बन ज्यादा है तो फिर आपको उसके साथ थोड़ी सी नाइट्रोजन भी डालनी चाहिए ताकि वो CN रेशो का सिस्टम खराब ना हो, क्योंकि अगर CN रेशो वाइड हो जाएगी तो फिर वो इमोबिलाइजेशन कर देगा ना, न्यूट्रिएंट्स रिलीज नहीं होंगे। सो इस वजह से वो आपको डालनी चाहिए। और ये भी आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने तूड़ी डाली है, अब तूड़ी में आपको पता है कि कार्बन ज्यादा है, अब आप उसमें दूसरा जो वेस्ट है कहीं से लेग्यूम्स का वेस्ट डाल दें, लेग्यूमिनस क्रॉप लेके उसका वेस्ट अगर आप उसमें डाल देंगे तो उससे ये होगा कि वो CN रेशो का बैलेंस कायम रहेगा, आपको फिर नाइट्रोजन नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये सिंपल सी टिप मैंने बताई है, अगर आप घर में प्रिपेयर करना चाहें कंपोस्ट तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जी, एनी सर अदर? यहाँ पे हाँ जी, हाँ जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर आजकल तो इस तरह इलाके भी जहाँ पे सर सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है सर, माइनस में जा रहा है। जी जी तो अगर हम अभी से स्टार्ट कर ले तो ये कंपोस्टिंग हो जाएगा, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा सर टेम्परेचर का? उसको प्लास्टिक की शीट से इसीलिए कवर करते हैं, मैंने कहा था उसको प्लास्टिक की शीट से कवर कर दें। वो प्लास्टिक की शीट से इसी वजह से कवर करते हैं कि वो क्या कहते हैं ना, तो उसके अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो उसके अंदर ही रहे। ऑफ कोर्स आजकल टेम्परेचर लो है तो इसलिए उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो हो जाएगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगा। आप शीट को हफ्ते के बाद उठाएं, उठा के उसको मिक्स कर लें, ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अली रज़ा हेयर सर, मैंने ये पूछना था कि अगर हम अपने फार्म पे फार्म यार्ड मैन्योर के बहुत बड़े ढेर होते हैं हाँ तो जी, उसमें कंपोस्टिंग करते हैं तो उसमें भी शुगर केन का मोलेसिस वगैरह या शुगर का स्प्रे करें और उसके ऊपर फिर लेयर वगैरह बिछाएं तो कंपोस्टिंग कैरी ऑन हो जाएगी। देखें जो फार्म यार्ड मैन्योर है ना उसमें ऑलरेडी मट्टी होती है। मट्टी क्यों डालते हैं, सोचा है आपने? आपने ये नहीं, आपको ये पूछना चाहिए था। मट्टी डालते हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो जो फार्म यार्ड मैन्योर होती है ना उसमें आपको मट्टी डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें गोबर भी होता है, उसमें सब कुछ होता है। इस वजह से उसमें आपको मट्टी डालने की जरूरत नहीं है। वो जो आपका मटेरियल है वो वैसे ही पड़ा रहने दें उसको। और उसमें अगर आप कोई चाहते हैं तो थोड़ा, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आपने उस पे शुगर केन का वो डाल देना है, मोलासिस या जूस। थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं तो, और उसकी मिक्सिंग कर लें तो वो क्विक हो जाएगा कंपैरेटिवली, बस। अदरवाइज अगर और आप वो सर नहीं भी डालना चाहते, सिर्फ उसकी आप मिक्सिंग करते रहें तो कंपैरेटिवली बेहतर होगा। उसको कवर रखें और उसकी मिक्सिंग करें। गांव में सर जो आप गांव में मट्टी देखते हैं वगैरह है नेचुरल कंपोस्टिंग हो रही है कि वो ढेर लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। उस ढेर को फिर वो साल के बाद या 6 महीने के बाद छेड़ते हैं, तब तक उसकी डिकम्पोजिशन हो चुकी होती है, वो कंपोस्ट बन चुका होता है। ओके सर। जी जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, इफ नो क्वेश्चन देन क्विकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। और ओके, सो क्योंकि हमने ऑर्गेनिक मैटर की बात की है तो उसी से रेलेवेंट आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है बायोचार का। आपने लफ्ज डेफिनेटली सुना होगा। जब आप हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो इसकी हम आपको फर्दर डिटेल्स बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा। कंपोस्ट के साथ इसको अभी जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। सो बायोचार है क्या? इट्स ए ब्लैक कार्बन formed by the process of pyrolysis. Pyrolysis क्या है? Heating a biomass feedstock rapidly
under oxygen free or stress environment. So this is the difference between compost and biochar. अगर आप बायोमास को अंडर लो ऑक्सीजन और अंडर द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज कर लें तो उसमें से सारी कार्बन डिकम्पोज नहीं होती है, कार्बन उसमें इंट्रैप रहती है, वो डिकम्पोज हो जाता है लेकिन स्टिल कार्बन उसमें मौजूद रहती है। ऐसे मटेरियल को हम बायोचार कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने आजकल तो आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा, हमारे ज़माने में होता था जब आप लोग ट्रैवल करते थे तो आप जगह जगह पे देखते थे ये पठानों ने मट्टी के घर से बनाए होते थे और उनमें से धुआं निकल रहा होता था। उसके अंदर उन्होंने लकड़ियां पैक की होती थी और साथ में थोड़े थोड़े सुराख थोड़ी सी ऑक्सीजन देने के लिए रखे होते थे। वो एक किस्म का बायोचार ही बन रहा था, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा दे देते थे इसलिए वो इतना परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो बायोचार ही था। अगर उसमें से सारी कार्बन डिकम्पोज हो जाए तो वो कोयला तो फिर जले ही ना, अभी कार्बन उसमें होती है। सो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है पायरोलिसिस का, ये यूज किया जाता है बायोचार बनाने के लिए। सो पायरोलिसिस क्या है? ड्यूरिंग पायरोलिसिस द ऑर्गेनिक मैटर इज हीटेड up to 300 to 600 degrees centigrade and transformed into three different components: bio oil, syngas and biochar. So तीन चीजें आपको उससे मिलती हैं अगर आप बायोमास को 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें अंडर लो ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको ये तीन चीजें उससे हासिल होंगी। बायो ऑयल मिलेगा, आपको गैस मिलेगी और आपको बायोचार मिलेगा, ठीक है। सो इससे आप इसको फर्दर समझ सकेंगे कि ये क्या है। क्या ये देखें, ये बायोमास है। बायोमास में क्या है? मैन्योर है, ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, बायो एनर्जी क्रॉप्स हैं जैसे ग्रासेस हैं, विलोज हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, ये सारे हैं। इस स्टेज में इनमें 100% कार्बन है, सारी कार्बन इनमें मौजूद है। आप पायरोलिसिस का प्रोसेस करते हैं, मतलब है पायरोलिसिस के प्रोसेस का कि आप जैसे मैंने बताया 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करते हैं अंडर लो ऑक्सीजन और अंडर नो ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उससे क्या होता है? उससे बायो ऑयल निकलता है, उससे बायोफ्यूल जो बायोफ्यूल के तौर पे यूज हो सकता है, और उससे हाइड्रोजन निकलती है जो उसे भी आप फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। और अब इसमें कितनी कार्बन यूज हो जाती है? 50% ऑफ द कार्बन गोज here in the form of fuel, and that 50% carbon or this fuel can be used for transport, for energy or for co-products like oil or cosmetic products, ठीक है। और even in industry you can use that, ठीक है। और इसी से आप हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो 300 से 600 डिग्री तक आपने उसको गर्म करना है, वो इसी हीट को यूज कर सकते हैं उसको हीट करने के लिए। और बाकी का जो मटेरियल बचता है जिसमें 50% कार्बन बच गई है, उसको आप वापस सॉइल में डाल सकते हैं। उसको आप वापस सॉइल में डाल सकते हैं। दैट कैन बी ए वेरी गुड एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। अब ये बहुत एक्टिव होता है, फाइन होता है, इसकी CEC बहुत हाई होती है, ठीक है। और ऑप्शनली आप इसको बायोचार को यूज कर सकते हैं। देखें कि अब इसमें कार्बन है तो इसका मतलब है जो भी वो बायोमास था, वो बायोमास आपने सॉइल में ऐड कर दिया है, वो फोटोसिंथेसिस से हुआ, फोटोसिंथेसिस से वो बायोमास बना था। मीन जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी वो स्टोर हो गई है अल्टीमेटली आके सॉइल में, ठीक है। सो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ यू कैन से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कि आप एटमॉस्फेयर में से कार्बन जो है वो स्टोर कर रहे हैं in soil in such a way that it improves your soil, ठीक है। आप ऑप्शनली
इसमें नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं, इसमें ये नॉक्स सॉक्स जो डिफरेंट गैसेस जो रिलीज हो रही हैं वो भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं इजीली, क्योंकि इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत हाई होती है। सो ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव कर देता है बायोचार। सो लेकिन अब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि अगर इसका इतना फायदा है, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि ये एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। दो इश्यूज हैं हमारे यहाँ, एक तो ये कि इतना बायोमास हम कहाँ से लेके आए, ठीक है। दूसरा ये कि इसको 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से लेके आए, ठीक है। सो अगर हम इन चीजों को मैनेज कर लें तो बायोचार these days is getting highly popular amongst the scientists कि इसको आप यूज कर सकते हैं। अब ये बायोचार, इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होती हैं, मैंने कहा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। सो जो आपकी हैवी मेटल्स हैं ये उनको इंट्रैप कर लेगा, नीचे ग्राउंड वाटर में नहीं जाने देगा, ठीक है। जो आपके कहते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स होती हैं ये उनको इंट्रैप कर लेगा, आपकी सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ा देगा, सॉइल की पोरोसिटी इंक्रीज कर देगा। सो इस तरह से इसकी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। सो आप इसको किस पर्पस के लिए, प्रेजेंट डे सिनेरियो में बायोचार की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, दैट कैन बी यूज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, कि आप एग्रीकल्चरल वेस्ट को उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर लें और जो पैथोजेंस हैं उनको खत्म कर लें। जब आप 300 से 600 डिग्री तक गर्म करेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा ना फिर। सो सिमिलरली यू कैन डू द वेस्ट मैनेजमेंट, यू कैन हैव द एनर्जी प्रोडक्शन, यू कैन मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। वो जो गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये बायोचार सारा, ये जो ऑर्गेनिक मैटर जो बायोमास था, अगर आप इसको विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज करते तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होकर दोबारा वापस ऊपर चले जाना था, तो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाना था जो ग्रीन हाउस गैस है और जो फिर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो उससे भी हम बच सकते हैं अगर हम बायोचार पे जाएं तो इससे हमें ऑफ कोर्स एडिशनल बेनिफिट हो सकती है, गैस और बायो ऑयल मिल सकता है जो हम फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी बताया कि इससे सॉइल इंप्रूवमेंट होती है, एक ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड हो रहा है जिसकी वजह से उसकी बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। सो एट दिस स्टेज आपके लिए इतना ही कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में आएंगे पीएचडी वगैरह में तो वहां पे इस पे इंडिपेंडेंट कोर्स है। अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इसमें तो मैं नवीद साहब को कहूंगा वो आपको इसको प्रैक्टिकल की क्लास में ज्यादा डिटेल से बता देंगे। अच्छा, अब क्लाइमेट चेंज में ये कैसे इफेक्ट करता है, मिटिगेशन टू क्लाइमेट एंड सॉइल चेंज, कैसे ये उसको इफेक्ट करता है। अब देखें, जो भी बायोमास है, ये लीफ ट्रैश है, डेड एनिमल्स हैं, जो भी बायोमास है उसमें 100% कार्बन है। आप उस कार्बन को, बायोमास कार्बन को आप क्या करते हैं, 100 ईयर्स तक सॉइल में पड़ा रहने देते हैं। तो आफ्टर 100 ईयर्स क्या होगा, उस बायोमास कार्बन में से कितनी कार्बन बाकी बच जाएगी, 0%। 100 साल के बाद वो सारा डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर उस 100% बायोमास जो कार्बन है उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर लें, उससे बायोचार बना लें, तो बायोचार से जब आपने एनर्जी प्रोड्यूस की तो उस वक्त मैंने अभी आपको पिछले में स्लाइड में बताया था कि 50% कार्बन जो है उसमें अभी भी मौजूद होती है। तो जो वो 50% कार्बन वाला मटेरियल है, बायोचार कार्बन, वो अगर आप सॉइल में ऐड कर दें तो इट आफ्टर 100 years स्टिल मोर देन 40% कार्बन अभी भी सॉइल में मौजूद होगी, ठीक है। सो दैट गिव्स यू द आइडिया कि अगर ये सॉइल में इतनी देर तक रिजाइड ना करे तो क्या हो, ये सारी वापस एटमॉस्फेयर में जाएगी और हमारी क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले करेगी। सो अगर आप उसको बायोचार में चेंज करके उस बायोचार को सॉइल में ऐड कर दें तो मीन्स आप 50% कार्बन ऐड कर रहे हैं जो 100 साल तक स्टे कर सकती है। 100 साल के बाद भी उसमें more than 40% कार्बन अभी भी मौजूद होगी। So it has the potential to reduce
current global carbon emissions by as much as 10%. कि अगर आप बायोचार बना के उस बायोचार को सॉइल में ऐड कर दें तो आप जो ग्लोबल कार्बन इमिशंस हैं वो 10% आप कम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बायोचार बनना है उसके लिए जो बायोमास यूज होना है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ही होना है ना, और फिर उससे वापस डिकम्पोजिशन स्लो होती है। इस वजह से ये रोल प्ले करता है इन द मिटिगेशन टू क्लाइमेट एंड सॉइल चेंज। ठीक है, और आपके सॉइल में हमारे यहाँ खास तौर पे मसला है कि ऑर्गेनिक मैटर बड़ा क्विकली डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर हाई है। सो अगर हम उसको बायोचार में कन्वर्ट करके डालेंगे तो क्या होगा कि वो ज्यादा देर तक स्टे करेगा सॉइल में। ठीक है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो वाहद क्वेश्चन है वो यही है कि इट इज एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस। ठीक है, कि वो एनर्जी जो 300 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, उसको हीट करना है, वो एक इशू है कि इसको एनर्जी इंटेंसिव से साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे इसको हम इजीली बना सकें बायोचार, ताकि फिर हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में नवीद साहब की लैब में एक फर्नेस है जिसमें वो उसको बर्न करते हैं बायोमास को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे वो दे कैन देन गेट द बायोचार। और बायोचार डिफरेंट हमारे यहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में या डिफरेंट एमएससी के स्टूडेंट्स इस पे काम कर रहे हैं फिर। ठीक है, एंड दिस बायोचार इज इवन वेरी गुड कैरियर फॉर बायो फर्टिलाइजर्स। हमने कैरियर्स वहाँ पे डिस्कस किए थे। आई डोंट रिमेम्बर कि वहाँ पे मैंने बायोचार का जिक्र किया था या नहीं, लेकिन बायोचार इज ए वेरी गुड कैरियर फॉर दी बायो फर्टिलाइजर्स एज वेल। सो हम कह सकते हैं कि बायोचार, ये तो मैंने बताया कि क्लाइमेट कोई चेंज को कैसे ये रोक सकता है। इसके अलावा क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है, सो इट कैन इम्प्रूव द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। इट कैन, क्योंकि बहुत फाइन होता है, सो इट हैज हाई सरफेस एरिया पर यूनिट मास। ठीक है, सो मोर मेटल्स वगैरह को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, उनको नीचे नहीं जाने देगा। सोर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इस पे नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं जिन पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इंट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है। इट रिड्यूसेस हैवी मेटल कंटेमिनेशन। ठीक है, एंड डिसॉर्प्शन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं कि कैसे ये करता है। मेजर रीजन इज कि इस पे क्योंकि नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, उन नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये सॉइल को भी इम्प्रूव कर देता है। यू नो द सॉइल विद हाई CEC इज ऑलवेज ए फर्टाइल सॉइल, और वो नॉर्मली कंटेमिनेशन से भी बचाती है। सो दिस वाज ब्रीफ कॉन्सेप्ट अबाउट बायोचार। अब इससे रेलेवेंट कोई आपका क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। जी, कोई क्वेश्चन? अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहें तो यू कैन आस्क डॉक्टर नवीद इन योर प्रैक्टिकल क्लास के वो आपको बायोचार के बारे में बता दें। वो इस पे कोर्स पढ़ाते हैं पूरा PhD की क्लासेस में और MSc की क्लासेस में। आपने अगर ऑप्शनल कोर्स लेना हो तो उनका ये बायोचार का कोर्स है। नॉर्मली लड़के ज्यादातर PhD में लेते हैं ये कोर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी इतनी डिटेल डिस्कस नहीं की है कि ये वो पूरा उस कोर्स में जो वो बंदा वो कोर्स लेगा उसको इसकी डिटेल बताई जाएगी। बस इसमें फर्क समझ लें कि ये पायरोलिसिस में होता है डिकम्पोजिशन जो भी है या उसकी हीटिंग है, और जो कंपोस्टिंग होती है वो पायरोलिसिस नहीं होती, वो एरोबिक कंडीशंस में हो रहा होता है। जी, एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर एहसानुल्लाह खान बात कर रहा हूँ सर। ये जी जी सिन गैस क्या चीज़ है? जी, ये उससे गैस निकलती है ना, गैस जैसे बायोगैस होती है ना, ऐसे ही उसमें से एक गैस निकलती है जिसको हम फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। जब ठीक उसको है आप हीट करते हैं ना बायोमास को, तो उससे ऑयल भी निकलता है, गैस भी निकलती है और बायोचार भी बनता है। ये तीन प्रोडक्ट्स मिलती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी इतनी एक्सपर्टीज किसी के पास नहीं है कि वो ये तीनों चीजें अलग-अलग हासिल कर सके। लेकिन एक हमने इनवाइट किया था, एक दफा एक चाइनीज साइंटिस्ट आए थे इधर, तो नॉट चाइनीज रादर अमेरिकन, तो उन्होंने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दी थी। तो दे हैव सक्सीडेड
कि इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग-अलग करके वो यूज कर रहे हैं बाकायदा तौर पे, देन अगर आप इन तीनों चीजों को अलग-अलग कर लें तो फिर देन इट बिकम्स वेरी इकोनॉमिकल, otherwise it becomes a little bit cost, it is not cost effective. ठीक है सर। सर और दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था जी कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ये तो एज अ न्यूट्रेंट यूज होते हैं, लेकिन कार्बन का तो इतना कोई रोल तो नहीं है न्यूट्रेंट के तौर पे, तो ये इसका आपको फायदा किसने क्या कहा? होगा फिर? ये किसने कहा आपको कि कार्बन का रोल नहीं है? सर क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस एसेंशियल में बनती है ना। न्यूट्रिएंट्स हैं भाई मेरे, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जरा वो गिनो तो सही कौन कौन से हैं, जरा पहले न्यूट्रिएंट्स गिनो कौन कौन से हैं। कार्बन इज आल्सो इसेंशियल, लेकिन ये है कि क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में से मिल जाता है, सफिशिएंट मौजूद है, इसलिए हम ऐड नहीं करते, ये आप कह सकते हैं। बट कार्बन इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट, कार्बन से ही तो लिविंग चीजें बनती हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ये अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है सर। आप ग्लूकोज नहीं बनता अगर, तो जो यस कंज्यूमर्स सर। हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उन्होंने फूड कहाँ से लेनी है? ठीक है सर। जी जी, एनी अदर क्वेश्चन? इस कार्बन ही की वजह से भाई मेरे एहसानुल्लाह, कार्बन ही की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड ही की वजह से फोटोसिंथेसिस को मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है, कि ये कार्बन सर बस मैं डाइऑक्साइड को ग्लूकोज वगैरह में चेंज करता है और उन कंपाउंड्स की फिर ऑक्सीडेशन होती है, वहां से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को दूसरे ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। ठीक है सर। जी ठीक है जी, अगर आपका और कोई क्वेश्चन नहीं है तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। आई ट्राई के उस क्लास में मैं इसको खत्म कर दूं कोर्स को, और फिर आपको नवीद साहब के हवाले वो जाने और उनका काम जाने, और आपका प्रैक्टिकल की क्लासेस, थ्योरी का बहुत कम पोर्शन रह गया है, बहुत ही कम, मेरे ख्याल में एक क्लास में खत्म हो जाएगा। तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द थ्योरी पोर्शन, एक्सेप्ट वन मैक्सिमम 2 क्लासेस एंड देन इट विल बी ऑल ओवर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, सर इसका मिड का कोर्स यानी कौन से टॉपिक तक होगा? वो बताएंगे मिड जब में मिड और का फिर टाइम आएगा ना, तब आपको बताएंगे कि कौन से ओके सर। टॉपिक तक होगा। जब मिड की थ्योरी की डिसाइड क्लास करेंगे तो उस वक्त सर आपको के पास भी बताएंगे है। कि मिड कहाँ तक होगा और फाइनल कहाँ तक होगा। अभी आप सारा ही पढ़ते नहीं इसको। ओके सर। सर थ्योरी हाँ। की क्लास को सर नवीद साहब के पास भी है। नहीं, थ्योरी की अभी तो मेरे पास ही है ना, अभी तो थ्योरी की नवीद साहब क्लास नहीं ले रहे, वो प्रैक्टिकल की क्लास लेते हैं। जी सर। जो ये क्लास है ना, मैंने आपको बताया था भाई मेरे एक दिन के कागजों में ये क्लास नवीद साहब के नाम है, बट ड्यू टू टेक्निकल रीजन इनिशियली ये मेरे और नवीद साहब के नाम थी, लेकिन ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल रीजंस मैंने उसमें से अपना नाम विथड्रा कर लिया था कि कागजों में मेरा नाम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। कागजों में नाम नवीद साहब का ही चलेगा, आपको उन्होंने ही पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया है। प्रैक्टिकल भी थ्योरी भी कागजों ठीक में सर। उन्होंने ही आपको पढ़ाया है। आई हैव जस्ट सपोर्टेड हिम। तो इसीलिए हमने, आपने देखा नहीं है जो यहाँ पे नोटिफिकेशन किया उसको चेंज किया था। पहले इसमें मैं और नवीद साहब थे, बाद में उसको चेंज करके मेरा नाम उसमें से निकाल दिया गया था। आप लोग जानते हैं रीजन को कि क्यों मेरा नाम उसमें निकाला गया था। सो इस वजह से ये कोर्स कागजों में आपको नवीद साहब ने पढ़ाया है। ठीक है जी, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।